નમસ્કાર, હું તો બોલેશમાં રોનક પટેલ આપનું સ્વાગત કરું છું। બીજા તબક્કાનો પ્રચાર પ્રસારના પડઘમ શાંત થઈ ચૂક્યા છે। સતત એક મહિનાથી ગુજરાતભરની અંદર નેતાઓના ભાષણ ગુંજતા રહ્યા। નેતાઓ સાચા ખોટા મુદ્દા બનાવતા રહ્યા, કદાચ મતદાતાને બનાવવાનો પણ પ્રયાસ કરતા રહ્યા, પરંતુ આજે પાંચના ટકોરે તમામ નેતાઓના ભાષણ થમી ગયા। નેતાઓ હવે હાથ જોડી ઘેર ઘેર જઈને પ્રચાર કરી શકશે, પરંતુ જ્યારે નેતાઓ બોલવાનું બંધ કરે છે ત્યારે પત્રકારે બોલવું જોઈએ। પત્રકારે સાચો માહોલ રજૂ કરવો જોઈએ, કારણ કે પત્રકાર નીડર અને તટસ્થ હોય છે। નેતાની વાત હર હંમેશ બાયસ હોય છે, પોતાના પક્ષ માટે, પોતાના હિત માટેની હોય છે, પરંતુ પત્રકાર ક્યારે કોઈ ઉમેદવારના નથી હોતા, ક્યારે કોઈ પક્ષના નથી હોતા। અને આજે એટલે જ લાગ્યું કે બહુ આપી દીધા માઇક નેતાઓને, આજે માઇક પત્રકારના હાથમાં હશે। અને એ પત્રકારો જેઓ ગુજરાતનું સતત રિપોર્ટિંગ કરતા રહ્યા, ગુજરાતની એક એક બેઠક ઉપર જાતે ફર્યા છે, નેતાઓને સાંભળ્યા છે, નેતાઓના ભાષણનું પોસ્ટમોર્ટમ કર્યું છે। એટલે મને લાગ્યું કે મારા ગુજરાતના આ મતદાતાઓ સમક્ષ એ પત્રકારોને લઈને આવવા જોઈએ, કેમ કે ગુજરાતની ચૂંટણીનું જબરજસ્ત મહત્વ હતું। લોકસભાની ચૂંટણી પહેલાંની આ સેમિફાઇનલ હતી, ખાસ કરીને પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનું ગૃહ રાજ્ય, ગૃહમંત્રી અમિત શાહનું ગૃહ રાજ્ય, અને બીજો તબક્કો તો બંને નેતાઓનો ગૃહ જિલ્લાની અંદર મતદાન થવા જઈ રહ્યું છે। ત્યારે રાષ્ટ્રીય પત્રકારો પણ આવેલા છે, દેશભરમાંથી પત્રકારો આવેલા છે, એબીપી નેટવર્કના અનેક પત્રકારો ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓમાં છે, તો એબીપી અસ્મિતાની ટીમ પણ ગુજરાતભરની અંદર સામેલ છે। આજે મને લાગ્યું કે એબીપી અસ્મિતા અને એબીપી ન્યૂઝ નેટવર્કના એ તમામ પત્રકારો સાથે તમને રૂબરૂ કરાવું અને એ મુદ્દાઓનું પોસ્ટમોર્ટમ કરીએ, એટલે કે ચૂંટણીના માહોલનું સાચું પોસ્ટમોર્ટમ કરીએ। શરૂઆત એબીપી અસ્મિતાના પત્રકારો પાસેથી જ કરવા માંગીશ। આપ જોઈ શકો છો મારી સાથે એબીપી ન્યૂઝના રિપોર્ટર્સ પણ છે, સાથે જ એબીપી અસ્મિતાનું જે રિપોર્ટિંગ કરનાર છે બંને છે। કુશાંક, તમારાથી શરૂઆત કરવા માંગીશ। નેતાઓ ગરજ્યા બહુ, તમે અમદાવાદમાં શું જોયું? અમદાવાદ શહેરની વાત કરીએ, શહેરી વિસ્તારની 16 અને ગ્રામ્ય વિસ્તારની 5 બેઠકો છે। એ વાતમાં કોઈ બેમત નથી કે અત્યાર સુધી જે 4 બેઠકો કોંગ્રેસના ધારાસભ્યો જીતીને આવતા હતા તેમાં ચોક્કસથી ફેરફાર આવશે। કારણ માત્ર એટલું છે, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનો રોડ શો, કારણ કે 32 કિલોમીટરનો આ રોડ શો કદાચ મને જ્યાં સુધી ખ્યાલ છે ત્યાં સુધી પ્રધાનમંત્રીનો સૌથી મોટો રોડ શો આ હશે। એટલું જ નહીં, એક પણ બેઠક તેમણે છોડી નહીં અમદાવાદ શહેરની, અને 3.5 કલાકથી વધારેનો આ રોડ શો થયો। બીજા દિવસે પણ આ પ્રકારનું આયોજન તેમનું કરવામાં આવ્યું, જે એક બેઠક પૂરતું સીમિત હતું, પરંતુ તેમાં પણ આપણે જોયું કે એક આખો જુવાળ હતો તે ચોક્કસથી ત્યાં આગળ જોવા મળ્યો। વાત છે કોંગ્રેસ પ્રેરિત જે ધારાસભ્યોની જે બેઠક છે તેમાં ચોક્કસથી ફેરફાર એટલા માટે પણ આવશે કારણ કે અનેક જાતિગત સમીકરણોને ધ્યાનમાં રાખીને પણ આ બેઠકો છે તે અલગ અલગ ઉમેદવારોને આપવામાં આવી છે, અને તેની સાથે ચહેરા પણ નવા ઉતારવામાં આવ્યા છે। તેને જોતા 2017ની સરખામણીએ અમદાવાદ શહેરમાં ભાજપને જે બેઠકો મળી હતી, એટલે કે 16માંથી 12 બેઠકો મળી હતી, તેમાં આ આંકડો છે તે ચોક્કસથી વધી શકે તેમ છે। અને કોંગ્રેસ માટે છેલ્લા એક અઠવાડિયામાં જેમ આપે કહ્યું હતું, પ્રચારનો જે છેલ્લો તબક્કો હતો તેમાં પીએમના 2 રોડ શો આખું જે સમીકરણ છે તેમાં ફેરફાર લાવી શકે તે પ્રકારની પૂરેપૂરી સ્થિતિ અમદાવાદ શહેરમાં મને જોવા મળી। अभिषेक भाई, आपसे जानना है, देखिए आपने तो पीएम का प्रचार भी देखा, बीजेपी का प्रचार भी देखा, ओवैसी साहब का भी प्रचार देखा, कांग्रेस का भी देखा। आपको लगा कहीं पर भी कि बीजेपी का जो प्रचार है उसको कांग्रेस ने काउंटर करने का प्रयास किया? रौनक भाई, देखिए मुझे ये समझ में आया कि कांग्रेस देखिए शुरू से ये बात कह रही है, हमने ये सवाल पूछा भी जो आप कह रहे हैं, ये बहुत ही मुझे लगता है सबसे माकूल सवाल इस चुनाव का कि कांग्रेस आखिर कहाँ है। ये सवाल हमने कांग्रेस से कहा, वो ये कह रहे हैं कि हम इस बार जो है एक अलग स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं। पिछली बार क्या था कि हमने जम के प्रचार किया था लेकिन हम बूथ पे नहीं पहुंचे थे, तो हम इस बार बूथ पे डटे हुए हैं। आप चमत्कार देखेंगे, उर्दू में मोजज़ा कहते हैं, तो मोजज़े की उम्मीद कर रहे हैं रौनक भाई। लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है कि देखिए बहुत महत्व होता है चुनाव के, खास तौर पर आखिरी दौर में किस तरह से आप जनता से कनेक्ट करते हैं। और जो अभी कुशांक कह रहे थे, पीएम मोदी ने जिस तरह से कनेक्ट किया है, मैं तो ये मान के चलता हूं रौनक भाई कि ये जो लड़ाई है ये 27 साल
साल बनाम पीएम मोदी, यानी कि 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी बनाम पीएम मोदी, सीधी लड़ाई है, रेखा खिंच गई है। अगर 27 साल अगर उसकी एंटी इनकम्बेंसी भारी हो रही है तो पीएम मोदी का जो कद है, जो उनका इमोशनल कनेक्ट है, जो उनके बैक टू बैक रोड शो हैं, जो उनकी प्रचार सभाएं हैं, जो उनकी अपील है, जो उनके तमाम सारे काम हैं इसके पहले के, ये जो कद है उनका, ये उस 27 साल पर भारी पड़ने जा रहा है क्या? ऐसा लग रहा है कि पड़ रहा है और ठीक ठाक पड़ रहा है। तो सीधी सी लड़ाई है यहां पर। 27 साल जो कांग्रेस बातें कर रही है और जो पीएम मोदी का जो कद है, तो कांग्रेस प्रचार में नहीं दिख रही, ये एक फैक्ट है। और पीएम मोदी जिस तरह से प्रचार कर रहे हैं, यही इस फासले की पूरी कहानी बयां करता है। હિરેન, શું કારણ રહ્યું? જુઓ, નેશનલ મીડિયા પણ કહી રહ્યું છે કે કોંગ્રેસ ક્યાં પ્રચારમાં ન આવી. તમે તો કોંગ્રેસ રિપોર્ટિંગ કરો છો, રાજીવ ગાંધી ભવન રોજ જતા હતા. શું કારણ રહ્યું? શું કોંગ્રેસ ચૂંટણી જીતવા માંગતી નહોતી કે કોંગ્રેસને લાગ્યું કે નહીં આ પ્રોપર સમય નથી કે ખરેખર કોંગ્રેસની કોઈ રણનીતિ હતી? જો રોનકભાઈ, બીજા તબક્કાને જ્યારે પ્રચારની વાત આવી ત્યારે એવું ના કહી શકાય કે કોંગ્રેસે દમખમ નથી લગાવ્યો. હા, પહેલા તબક્કામાં દમખમ કોંગ્રેસનો ચોક્કસથી ઓછો હતો, પરંતુ બીજા તબક્કામાં એ દમખમ વધી ગયો. હવે મૂળભૂત જો વાત કહી દઉં તો કોઈ પણ વ્યક્તિ પોતાના પ્રોફેશનને લઈ અને જ્યારે વફાદાર હોય છે ત્યારે એને સિદ્ધિ હાંસલ કરે છે. પરંતુ કોંગ્રેસ માટે હું એક જ વાત કરીશ કે એનું પ્રોફેશન રાજકારણ છે, પરંતુ એ રાજકારણ પ્રત્યે પણ વફાદાર નથી. જો રાહુલ ગાંધીની પદયાત્રા બીજી જગ્યાએ થતી હોય છે અને ગુજરાતની અંદર જો ચૂંટણી હોય છે અને એ ગુજરાતમાં પદયાત્રા નથી કરતા, તો મને એટલું સમજાય છે કે રાહુલ ગાંધી પોતાના પ્રોફેશન એટલે કે રાજકારણ પ્રત્યે વફાદાર નથી. અને આ એનું જ પરિણામ આવશે, જે આવશે 8 તારીખે. ભલે જે આવશે, કદાચ એ લોકો કહે છે સરકાર બની જશે તો બની જશે, પણ એ સરકાર એવી નહીં બને જે સરકાર ભારતીય જનતા પાર્ટી અહીંયા બનાવતું આવ્યું છે 1995થી. હું માત્ર નરેન્દ્ર મોદીએ બનાવી ત્યારની સરકારની વાત નથી કરતો. ભારતીય જનતા પાર્ટીએ જ્યારથી ગુજરાતની અંદર શરૂઆત કરી છે ત્યારથી, અને જ્યારે પોતાના હોમ સ્ટેટની અંદર લડાઈ હોય, આજે અમિતભાઈ હોય, નરેન્દ્રભાઈ હોય, એ પહોંચી ગયા છે રાષ્ટ્રીય સ્તરે, પરંતુ જ્યારે ગુજરાતની વાત આવે છે ત્યારે પૂરેપૂરો દમ લગાવી દે છે, પ્રાણ ફૂંકી દે છે, એના પોતાના જીવ ઉપર આવી ગયું હોય એ રીતે ચૂંટણી લડે છે, કારણ કે પોતાનું ઘર છે અને પોતાનું ઘર એને જાળવી રાખવું છે. જ્યારે કોંગ્રેસે મને લાગે છે કે ગુજરાતની ચૂંટણીને પોતાનું ઘર માન્યું જ નથી અને એના કારણે આ દ્રશ્યો સામે આવી રહ્યા છે. मनोज्ञा, नेताओं के दिल दिमाग को पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन पॉलिटिक्स और चुनाव सिर्फ पब्लिक के जरिए नहीं जीता जाता है, एक मेंटल गेम भी होता है. आपने क्या देखा? क्या कांग्रेस जिस प्रकार से नरेंद्र भाई बता रहे थे 1 महीने पहले कि कांग्रेस पर्दे के पीछे कुछ कर रही, सही में पर्दे के पीछे कर रहा? कोई माइंड गेम थी कांग्रेस की या सिर्फ बातें ही रही? देखिए, एक बड़ी हिंदी में उर्दू में शेर है, आग लगा दो चिलमन को, ना वो देखे ना मैं देखूं. कुछ ऐसा ही हाल हो रखा है कांग्रेस का. लेकिन कांग्रेस की जगह मैं यहाँ पर 2 बातें कहना चाहूंगी. पहला ये कि ये गुजरात मॉडल बनाम इंडिया है लड़ाई इस समय, क्योंकि बीजेपी के लिए 27 साल का राज और उसको प्रूव कर देना कि वो इस बार सही है जमीनी स्तर पर. एंटी इनकम्बेंसी काम नहीं करती है. ये सिर्फ 2 या 3 राज्यों में ही देखा गया है, जैसे लेफ्ट की सरकार, अगर वाम मोर्चा की सरकार बंगाल में रही हो, या फिर लगातार उड़ीसा में बीजेडी की सरकार रही हो, जो कि क्षेत्रीय पार्टी होकर लगातार टिकी रही है. लेकिन बीजेपी का एडवांटेज क्या है? उनका होमवर्क. एक प्रधानमंत्री के लिए गांव-गांव में जाकर कैंपेन करना, ये जानते हुए वो कौन सी सीट पे जीत सकते हैं, हार सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि बहुत शर्म और लिहाज के साथ करना, लेकिन जमीन पर डटे रहना, ये बड़ी बात होती है. दूसरी बड़ी बात ये होती है कि अर्बन और रूरल का जो डिवाइड है वो अहमदाबाद से लेकर अगर आप कच्छ की बात करें तो दिखता है, लेकिन इतना नहीं है जितना बाकी राज्यों में दिखता है. प्रधानमंत्री हैदराबाद के एक निकाय चुनाव में जाके कैंपेन कर लेते हैं और वहां पर गुजरात में भी आकर लगातार कैंपेन कर लेते हैं. हालांकि आपको एक चीज़ समझनी होगी, मैं गुजरात को आपके जैसा नहीं जानती हूँ, लेकिन पल्स होती है और जो नब्ज होती है ना लोगों की, वो इस समय सिर्फ सेफ्टी सिक्योरिटी के इर्द गिर्द घूम रही है. उसके बाद धर्म और बाकी मुद्दे आते हैं जो कि बात की रीज़न है. लेकिन अगर आप विकास के मॉडल को देखेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि सड़कें नहीं बनी हैं. इसलिए ये सब जानते हैं कि अगर पिछले 2 दशकों में सरकार ने काम किया है, सड़कें बनाई हैं, ये आप तब समझेंगे जब आप किसी दूसरे राज्य की टूटी सड़कों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि गुजरात में बेहतर क्या है. हालांकि ये मैं मानती हूँ कि जब किसी का पेट भरा होता है तो उसकी चाहत अलग होती है, और जब कोई भूखा आदमी सड़क पर जा रहा होता है 2 जून की रोटी कमाने के लिए, तो उसकी चाहत होती है कि मैं किसी तरह से कमाई करके वापस आ जाऊँ. गुजरात एक संपन्न राज्य
की ओर आगे बढ़ रहा है, जिसका फायदा बीजेपी को है, जिसे गुजरात मॉडल बनाकर पूरे देश में पेश किया जाता है। और अगर आप सेमीफाइनल कहें तो उनके लिए ये ऐसी जंग है जो जीतना बहुत जरूरी है, सिर्फ 100 से ज्यादा सीट से नहीं, बल्कि एक ऐसे आंकड़े से जिससे इतिहास पे स्टैंप लगाकर कह दिया जाए कि हाँ, हमने ऐसी वर्चस्व वाली जीत हासिल की है। बिल्कुल रौनक, मेरे साथ दो रौनक है यहाँ पर। एक रौनक पटेल है जो गुजरात को जानता है, एक रौनक है जो महाराष्ट्र को भी जानता है, देश की राजनीति को भी जानता है। रौनक, मैंने देखिए आम आदमी पार्टी को यहाँ पर देखा, कॉरपोरेशन के चुनाव के वक्त भी देखा, आपने भी देखा, आप तो खास करके साउथ गुजरात में काफ़ी रिपोर्टिंग किया। आपको क्या लग रहा है, आप जो है आम आदमी पार्टी है, सीरियस प्लेयर लग रही थी? जी देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर सीरियस प्लेयर लग रही थी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने रणनीति बनाई थी, खासतौर से अगर देखा जाए तो दिल्ली और पंजाब में जिस रणनीति के तहत आम आदमी पार्टी ने दमखम के साथ मैदान में वो चुनाव पर उतरती है, उसी तरह से वे इस गुजरात के चुनाव में भी अरविंद केजरीवाल, उनकी पूरी टीम जो है वो देखने को मिली। खासतौर से समीकरण जो है उन्होंने गढ़ने की कोशिश की। जो साउथ गुजरात का इलाका है, खासतौर से सूरत का जो इलाका है, वहाँ की अगर बात की जाए तो वहाँ पर जो महानगर पालिका के चुनाव हुए थे, वहां पर उन्हें अच्छी सफलता मिली, जिसके बाद उन्होंने एक रणनीति के तहत वहां पर पूरी तरीके से फोकस किया। प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया वहीं से आते हैं, वो सीआर पाटिल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, उनका वो गढ़ माना जाता है। पिछली बार बीजेपी को जो सबसे ज्यादा कामयाबी मिली जिस सूरत इलाके में, वहां पर ज्यादा फोकस करती हुई मुझे आम आदमी पार्टी दक्षिण गुजरात के उस इलाके में दिखी, और उस रणनीति के तहत पूरी तरीके से उन्होंने खाका जो है वो रचने की कोशिश की। अरविंद केजरीवाल के फिर रोड शो हो, दूसरे कई नेताओं को वहां पर समय समय पर भेजना हो, तो कुल मिलाकर वहां पर काफी फोकस जो है वो देखने को मिला। और एक जो आपने कहा कि क्या ये एक फोकस के तरह आम आदमी पार्टी इस चुनाव में दिख रही थी, तो वाकई में दिख रही थी। लेकिन मुझे जो देखना है वो ये है कि कितना वोट शेयर आम आदमी पार्टी चुनाव में अपने पाले में ला पाती है। अगर वो 20% का आंकड़ा पार कर लेती है तो कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी बज जाएगी। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आज कांग्रेस की हालत है, कुछ इस तरह की हालत जो है आने वाले दिनों में गुजरात में भी हो सकती है। जबकि गुजरात कांग्रेस के लिए एक ऐसा प्रदेश है जहां पर अमूमन हमने देखा है कि 35-37% वोट शेयर बिना मेहनत करे भी उन्हें मिलता है। अगर कांग्रेस के नेता मेहनत करते तो इस बार नतीजे जो है वो अलग हो सकते थे, लेकिन वो मेहनत जो है उतनी दिखाई नहीं दी जैसे बाकी पत्रकारों ने भी विश्लेषण किया है। राहुल गांधी अगर यहां पर फोकस करते हुए दिखते हैं, प्रियंका गांधी अगर जितनी ताकत के साथ हिमाचल प्रदेश में वे प्रचार कर रही थी, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जगह जगह घूम रही थी, उस तरह का प्रचार अगर यहां देखने को मिलता तो हो सकता है कि तस्वीर जो है आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए इस चुनाव में और बेहतर हो सकती थी। लेकिन वैसा नहीं दिखा, और अगर आम आदमी पार्टी इसका फायदा उठा पाती है तो कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर एक खतरे की घंटी होगी। जी હિરન, આ ખતરાની ઘંટી તમારા માટે પણ હશે, કારણ કે તમે કોંગ્રેસ કવર કરો છો. અને જેવી રીતે રોનક કહી રહ્યા હતા કે પત્રકારો આક્રમકતાથી કોંગ્રેસ કવર કર્યું, પરંતુ કોંગ્રેસના નેતાઓમાં એવી આક્રમકતા ન દેખાય. શું કારણ? જો કોંગ્રેસના અનેક નેતાઓ ઇન્ડિવિજ્યુઅલી તો ઘણા સ્ટ્રોંગ છે. બિલકુલ રોનકભાઈ, જ્યાં સુધી આપણે વાત કરીએ કોંગ્રેસના નેતાઓની આક્રમકતા, તો ચોક્કસથી એ આક્રમકતા જોવા મળી, પરંતુ એ જ્યારે ટિકિટની વહેંચણી થતી હતી, ફાળવણી થતી હતી, ત્યારે એ આક્રમકતા ચોક્કસથી જોવા મળી. પોતાના લોકોને વધુમાં વધુ ટિકિટ મળે, અથવા તો પોતાના લોકો જેમાંથી સિટિંગ ધારાસભ્યો છે એની ટિકિટ ના કપાય એના માટે થઈને સામસામે બાયો ચડાવી જ લીધી હતી. એટલે આક્રમકતા નથી એવું નથી, પરંતુ જ્યારે વાત કોઈ મુદ્દાની આવે, હું એક ઉદાહરણ સાથે જ આપને વાત કરીશ કે ગઈકાલથી એક સમાચાર ચાલી રહ્યા છે મીડિયાની અંદર કે ઓબીસી સીએમ ચહેરો આવશે, તો એ સમાચારને બેક સાઈડથી દરેક નેતા પુશ કરે છે, પરંતુ ગઈકાલથી લઈ અને અત્યાર સુધી કોંગ્રેસના એક પણ નેતાએ મીડિયા સામે આવીને એવી વાત નથી કરી કે હા, જો અમે સરકાર બનાવશું તો અમારામાંથી ઓબીસીમાંથી કોઈ પણ એક મુખ્યમંત્રી બનશે. કોઈ એવું નથી કહેતું કે અમે 3 નાયબ મુખ્યમંત્રી બનાવશું. સમાચાર તમને આપણને બધાને ખબર છે, આપણે મીડિયા રિપોર્ટિંગ કરીએ છીએ, પોલિટિકલ રિપોર્ટિંગ બધા કરીએ છીએ, સમાચાર કેવી રીતે પુશ થતા હોય છે, તો આ સમાચાર પુશ થયા, પરંતુ એ મુદ્દો એ લોકોએ ના કર્યો. એટલે આમાં પણ એ જ વસ્તુ છે કે પત્રકારો ચલાવે, અમને ચલાવવામાં ઇન્ટરેસ્ટ નથી. લોકો જેમ રોનક કુકરેએ કીધું કે 35-40% વોટ શેર એને મળી જાય, તો કે હા લોકો આપે, પણ અમારે નથી જોતા. આજુ વખતની વાત કરીએ તો આજુ વખતે બહુ જ સિરિયસ લડાઈ છે આ ચૂંટણી, કેમ કે કોરોના જેવો મહામારીનો કાળ પસાર થયો છે, લોકો ઘણા જ હેરાન થયા છે, અને એમાં કોઈ ભાજપ વાળો કે કોંગ્રેસ વાળો હેરાન નથી થયો, દરેક ગુજરાતી હેરાન થયો છે. અને આ મુદ્દો કોંગ્રેસ ધારે તો બહુ જ સારી રીતે હાઇલાઇટ કરીને લઈ શકતો હતો, કારણ કે નિષ્ફળતા આપણે જોઈએ જ છે, એમાં કોઈ બેમત નથી.
ચાહે કોઈ પણ સરકારની એ નિષ્ફળતા હોય, દરેક રાજ્યોમાંથી સરકારની એ નિષ્ફળતા સામે આવી છે. પહેલી લહેરને બાદ કરી દો, બાદમાં બીજી લહેર આવી તો ત્યારે પ્રિપેર રહેવું જોઈતું હતું સરકારે, પણ કોઈ પણ રાજ્યની સરકાર એટલી પ્રિપેર નથી રહી. તો વિપક્ષમાં જ્યાં પણ કોંગ્રેસ છે એ આ મુદ્દાને હાઇલાઇટ કરી શકતું હતું, પણ ના કર્યું. જાણે કે કોરોના મુદ્દો જેવી ચૂંટણીની તારીખ જાહેર થઈ એટલે ગાયબ જ થઈ ગયો છે. બસ માત્ર 4 લાખ રૂપિયાનું વળતર આપવા પૂરતું સીમિત રહી ગયું કોંગ્રેસના ચૂંટણી ઢંઢેરામાં. એટલે આક્રમકતા તો નથી, પરંતુ જે લોકો આક્રમકતાથી કોંગ્રેસ માટે લડવા ઈચ્છે છે એ લોકોને પણ સપોર્ટ કોંગ્રેસના નેતા નથી કરતા. અને એનું જ કદાચ કારણ આ રહ્યું કે આ વખતની ચૂંટણી ખૂબ જ સારી તક હતી. હું તો ત્યાં સુધી કહીશ કે 2017માં જ્યારે અલગ અલગ સમાજના આંદોલન હતા અને એવા નેતાને ખભે બેસાડીને કોંગ્રેસ નીકળી હતી ને એક વાતાવરણ બન્યું હતું. જો કે આ હજુ વખતે તો એ બધા ખભે બેસાડ્યા હતા, એ આપણી ગુજરાતી કહેવત છે એ પ્રમાણે નીકળી ગયા છે, પરંતુ છતાં પણ માહોલ સારો હતો. પરંતુ જ્યાં ટિકિટની વહેંચણી થઈ माहौल कररभूस થઈ ગયો. अभिषेक, आपसे ये जानना है, देखिए रौनक बता रहे थे कि आम आदमी पार्टी से कांग्रेस को खतरा है. आपको क्या लग रहा है, सिर्फ आम आदमी पार्टी है या ओवैसी की पार्टी भी खतरा साबित हो सकती है? देखिए रोहन भाई, ओवैसी की जो पार्टी है और आम आदमी पार्टी, ये दोनों, जब ये इलेक्शन शुरू हुआ था, मैं करीब 1.5 महीना मुझे हो गया है, शुरू में जो चीजें दिखाई दे रही थी, शुरू में ऐसा लग रहा था कि एकदम जैसे ये इलेक्शन इस बार नया इतिहास रच रहा है. कांग्रेस बनाम बीजेपी की लड़ाई अब जो है 4 दिशाओं में नदी बह रही है, साबरमती की 4 धाराएं निकल गई हैं. लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन बढ़ता गया वैसे वैसे चीजें चेंज होती गई. अब इस समय मैं खासतौर पर बात करूं अहमदाबाद की, उत्तर गुजरात की, मध्य गुजरात की, यहां आम आदमी पार्टी का वो जोर नहीं दिखाई पड़ रहा. जो जोर दिखाई, जो रौनक कह रहे हैं, वो सूरत में दिखाई पड़ रहा है, कुछ हद तक सौराष्ट्र में दिखाई पड़ रहा है, इधर नहीं दिख रहा है. ओवैसी की जहां तक पार्टी है, ओवैसी की पार्टी को लेकर के देखिए मुसलमानों में बड़ी क्लियर राय होती जा रही है. आज हमने खुद बात की अहमदाबाद की, जो यहां की जामा मस्जिद है, उसके शाही इमाम से बात की. उन्होंने क्लियर कहा कि व्हाट्सएप आ रहे हैं और व्हाट्सएप मैसेज में लिखा जा रहा है कि मुसलमानों को वो गलती नहीं करनी जो 2012 में की थी. और वो एग्जाम्पल देते हैं कि 2012 में जमालपुर में बीजेपी का कैंडिडेट जीत गया था, जहां 60% से ज्यादा, आप तो बताते हैं 70% वहां पर आबादी, मुस्लिम आबादी, वहां पर बीजेपी जीत गई थी. तो इसीलिए जीत गई थी क्योंकि वोटों का डिवीजन हो गया था उस समय. तो वो क्लियर है कि वोटों का डिवीजन नहीं होना है. वो ओवैसी को वोट देने ना दिया जाए, इस बात की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं. तो मेरा यह मानना है कि ओवैसी फैक्टर, आम आदमी पार्टी फैक्टर, ये दोनों ही फैक्टर अब उतने ज्यादा प्रभावशाली नहीं रह गए हैं. ये लड़ाई सीधा बीजेपी बनाम कांग्रेस की. लेकिन एक बात जरूर कहूंगा रौनक भाई, कि जैसे कि जमालपुर का एग्जाम्पल लें, जैसे कि दानी लिमड़ा का एग्जाम्पल लें, जहां लड़ाई बहुत ही क्लोज है, वहां पर अगर ओवैसी के उम्मीदवार ने कुछ वोट काट लिए क्लोज लड़ाई में, तो वहां पर नतीजा बदल भी सकता है. કુશાંક, કેમ કે 2 બેઠકની વાત કરી અમને, બંને બેઠકો અમદાવાદ સાથે જોડાયેલી છે. ટોટલ પ્રદેશમાં 8 થી 10% મુસ્લિમ વોટર છે. જે 2 બેઠકો છે અમદાવાદની, એમને કેટલી ચિંતા હશે? ચિંતા ચોક્કસથી છે. ચૂંટણી જાહેર થઈ તેની પહેલાંની ચિંતાઓ છે, કારણ કે સોશિયલ મીડિયામાં તેમના જે સમર્થકો જે મેસેજ મોકલતા હોય છે તેના પરથી સમજી શકાય છે કે ચિંતા કેટલી હોય છે. ઇમરાન ખેડાવાલાની વાત છે, ગ્યાસુદ્દીન શેખની વાત છે. અમદાવાદ શહેરમાં આ બંને બેઠકો જ્યાં આગળ મુસ્લિમ ધારાસભ્યો ચૂંટાઈને આવતા હતા અને જેવી જાહેરાત થઈ કે MIMની જે પાર્ટી છે તે આ વખતે ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં લડવાની છે, તે લોકોએ શરૂ કર્યું કે આની અંદર ખૂબીઓ કેવી છે તે કાઢવાનું. અને કારણ કે સ્વાભાવિક રીતે જમાલપુરની વાત કરીએ તો ટોટલ 1,60,000-70,000 મતદારોમાંથી 1 લાખ મુસ્લિમો છે અને એ પ્રકારની પરિસ્થિતિ દરિયાપુરમાં પણ છે કે જ્યાં બહુમતી મુસ્લિમ વોટર છે. આ જ કારણ રહ્યું કે તે લોકોનું એક ફોકસ હતું કે જે તમે ભાજપની સામે તમે અત્યાર સુધી લડતા આવતા હતા તે તમે તમારું ટાર્ગેટ ફોકસ કરી અને તે બદલી અને તમે લઈ ગયા MIM ઉપર. અને પરિસ્થિતિ એ પ્રકારની થઈ કે તેમના જે મતદારો હતા, તેમના સમર્થકો હતા, તે તમામ લોકો એ જ રીતના લડતા આવ્યા કે કોંગ્રેસ અને MIM વચ્ચે સીધી ટક્કર છે, બીજેપીના જે ઉમેદવારો છે તે નથી. પરંતુ પરિસ્થિતિ એ પણ પ્રકારની છે કે જે કોંગ્રેસના જે ધારાસભ્યો હતા, કોંગ્રેસના ઉમેદવારો હતા, તે બીજેપીના અને અન્ય જે પક્ષે જાહેર કરેલા ઉમેદવારો હતા તેમને ગંભીરતાથી કદાચ એક તબક્કે ન પણ લેતા હોય, પરંતુ ચોક્કસથી મુસ્લિમ મતદારોમાં પણ એ પ્રકારની પરિસ્થિતિ છે. અને એક વિચારણા તો ચોક્કસથી છે કે આખરે આ ચૂંટણીમાં કયા આપણા નેતા છે જેને વિધાનસભામાં મોકલવા કે જે આપણા समाज ने અને તેમના જે લઘુમતી સમાજ છે તેમની વાત વિધાનસભામાં પહોંચાડી શકે. मनो क्या देखिए, हम गुजराती लोग काफ़ी शांत होते हैं, एग्रेसिव कैंपेन भी हम लोगों ने देखा नहीं है. जिस प्रकार के बयान आप देश भर में घूमती है उस प्रदेश में होते हैं, हमारे लोग सुन नहीं पाते हैं. पहली बार हम लोगों को रावण भी सुनने को मिला, कभी नाग भी सुनने को मिला, कभी औकात शब्द भी सुनने को मिला. इस प्रकार की जो हेट स्पीच है, आपका आकलन क्या है? किसको फायदा पहुंचा सकते हैं, किसको नुकसान?
गुजरात वो स्टेट है जहां पर नमक को भी मीठा कहते हैं। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ का चुनाव कितना मीठा है। मैंने इतना मीठा चुनाव पिछले 20 साल के करियर में नहीं कवर किया है, खास तौर से क्योंकि मैं बंगाल में रहती हूँ। वहाँ जिस तरह की हिंसा होती है उसकी तस्वीरें और यहाँ की तस्वीरों में ज़मीन आसमान का अंतर है। लेकिन जो हिडन एजेंडा रहता है लोगों का, जब आपसे लोग कैमरा पे बात करते हैं तो कहते हैं कि हाँ हाँ हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। उस एंटी इनकम्बेंसी का कोई चेहरा नहीं है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े होकर ये कह ले कि हम इनके खिलाफ लड़ेंगे और जीत लेंगे, क्योंकि वो कद और पद बहुत बड़ा हो चुका है। हम बात कर रहे थे स्टैचू ऑफ यूनिटी की। अगर आप स्टैचू ऑफ यूनिटी की ही बात करें तो जो बाहर से आने वाला है व्यक्ति, पहले जो सवाल करते थे कि 3,000 करोड़ रुपए खर्च करके एक मूर्ति क्यों बनाई गई, अब उसके जवाब में लाखों और करोड़ों रुपए का टूरिज्म हो रहा है और उस इलाके की तस्वीर बदल गई है। जहां पर बीजेपी पिछली बार हारी थी वहां पर उनके चांसेस जीतने के बढ़ गए हैं। ऐसे में अगर हम पूरे इलेक्शन को एक गणित माने तो वो ये बखूबी जानते हैं कि उनकी जीत का कारण महिला वोटर हैं, उनकी जीत का कारण युवा वोटर हैं, जो पिछले 2 दशकों में बीजेपी के अलावा किसी की सरकार जिसने देखी ही नहीं है, उसे ये पता ही नहीं है कि किसी और का रूल क्या होगा। जिसका जन्म 2002 के पहले हुआ है या 2002 के आसपास हुआ है, उसने तो अपनी पूरी लाइफ ही बीजेपी की सरकार देखी है, तो उसने एक ही पार्टी देखी है, उसे परिवर्तन का चस्का भी नहीं है। गिर सोमनाथ हम गए थे, गिर सोमनाथ में मुस्लिम लड़कियों को नौकरियां मिली हैं। जब बात धर्म की होती है, लेकिन जब नौकरी दी जाती है तो उसकी तस्वीर अलग हो जाती है। विकास के मॉडल को जिस तरह से बीजेपी ने सबके सामने लाके खड़ा कर दिया है, उसको कुछ जगह पर धर्म के परे कर दिया है, लेकिन सोमनाथ और द्वारका जैसे मंदिर को बनाकर धर्म के मुद्दे को जिंदा रखा है। तो अगर आप ये कहेंगी कि यहाँ का जो चुनाव है वो अलग है, हाँ बिल्कुल अलग है। यहाँ के जितना आपका मिर्ची मीठी होती है, मिर्ची में ना तीखापन नहीं होता है गुजरात के। आप 5 मिर्ची भी खा लेंगे तो आपको उसका स्वाद बड़ा अच्छा लगेगा। और ये खासियत है गुजराती खाने की, जब हम कहीं भी जाते हैं तो हम चाय के पहले बोलते हैं कि चीनी कम दीजिएगा, जिससे हमें ये पता रहे कि आप उसमें चीनी कम देकर देंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुकाबले मैंने 4 महीने वहाँ का चुनाव कवर किया, तो वहाँ जितना गन्ना और चीनी देख ली थी, उसके बाद यहाँ की मिठास बराबर लग रही है। हालांकि चुनाव में मिठास और खटास ज़रूर जारी रहेगी इस बार। रौनक, आपसे जानना है, देखिए मरोगिया तो नॉर्थ से हैं तो उनको मिठास गुजरात की ज़्यादा नज़र आ रही है क्योंकि वहाँ तीखा टेस्ट है। लेकिन आप महाराष्ट्र से, गुजरात महाराष्ट्र एक था, यानी कि सबका टेस्ट भी एक है, शायद सोच भी एक है। काफ़ी सारे आपके लीडर्स यहाँ पर भी आए। आपको क्या लग रहा, महाराष्ट्र के नेता हेट स्पीच देने में आगे हैं या हमारे गुजरात के? नहीं, देखिए, अगर महाराष्ट्र और गुजरात के हेट स्पीच की बात की जाए तो निश्चित तौर पर मैं फिलहाल महाराष्ट्र के नेताओं को जरा इस पर आगे रखूंगा, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह की बयानबाजी महाराष्ट्र में देखने को मिली, वो निश्चित तौर पर उसको लेकर कहा जा सकता है कि जो स्तर है वो काफ़ी महाराष्ट्र की राजनीति का नीचे जा रहा है, अगर बयानबाजियों की बात की जाए। लेकिन अगर आप गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में मैंने देखा कि जिस तरह का यहाँ पर प्रचार देखने को मिला, जो मुद्दे अपोजिशन की तरफ से खड़े कर घेरने की कोशिश की जानी थी, मुझे लगता है कि बीजेपी अपने एजेंडे पर लाकर कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी इनको घेरने की ज्यादा कोशिश करती हुई दिख रही थी। फिर चाहे इन्वेस्टमेंट का मामला हो, अगर रोजगार का मुद्दा कांग्रेस उठाती थी तो प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर बड़े प्रोजेक्ट्स जो है ठीक चुनाव से पहले बड़े प्रोजेक्ट्स का ऐलान कर दिया। यानी जो लोग कह रहे थे कि गुजरात में रोजगार नहीं है, सरकार रोजगार देने में नाकामयाब रह रही है, उनको एक मुंहतोड़ जवाब देने की यहां पर कोशिश की है। और मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो जितने भी यहां पर योजनाएं जो है बीजेपी देती हुई दिख रही है, एक तो सभी वर्ग को इसका फायदा मिलता है और दूसरा अगर देखा जाए तो इसके जरिए वो अपनी राजनीति को आगे बढ़ाती हुई दिखती है। पेज प्रमुख की जो संकल्पना है मुख्य तौर पर वो गुजरात में सबसे ज्यादा मजबूत दिखाई देती है और यही वजह है कि उनका संगठन आज 50% वोट जो है वो लेता हुआ दिख रहा है और 50% में बाकी सब पार्टियां जो है वो लड़ती झगड़ती दिखाई दे रही है। अगर ये कहा है कि कांग्रेस का वोट शेयर अगर कम होगा तो विश्लेषण हो रहा है कि आम आदमी पार्टी उनका वोट शेयर ले लिया, लेकिन ये विश्लेषण बहुत कम जगह देखने को मिल रहा है कि बीजेपी का वोट शेयर जो है वो बीजेपी का जो मतदाता है वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ दिखा रहा है। तो इसीलिए यह कहा जा सकता है कि बीजेपी यहां पर काफी मजबूत है। हालांकि हमने आखिरी मौके पर देखा कि प्रधानमंत्री इतने मजबूत होने के बाद भी आखिरी 2 दिनों में अहमदाबाद में 54 किलोमीटर का रोड शो करते और दूसरे दिन 15 किलोमीटर का रोड शो करते और ऐसे इलाके से वो रोड शो गुजरता है कि जहां पर मुस्लिम बहुल इलाके उसको माना जाता है। तो प्रधानमंत्री भी मजबूती का संदेश अपने कैंडिडेट्स के लिए देने की कोशिश करते हैं और मैदान में जोर शोर से उतरते हुए दिखते हैं। जी હિરેન, આ શોની ઓળખ પણ એની બોલ્ડનેસ છે, ચોખ્ખું કહેવાળા આપણો લોકો છીએ। તમે શું માનો છો,
આપણે કહીએ કે રાહુલ ગાંધી આવતે તો સારું સારું, તમે તો બહુ ઉમેદવારને પણ કોંગ્રેસના મળતા હતા, કોંગ્રેસના નેતાઓને પણ મળતા હતા. શું કોંગ્રેસના નેતાઓની હકીકત નથી, ડર હતો કે કેન્દ્રમાંથી નેતા આવશે, કંઈક ના કંઈક બાપશે અને હેરાન આપણે થઈશું? જો બે વાત છે, શરૂમાં અહીંના નેતાઓને એવી આશા હતી કે રાહુલ ગાંધી આવશે, પ્રિયંકા ગાંધી આવશે અને 2017 જેવો ફરીથી માહોલ ઊભો થશે. જ્યાં સુધી મને ખબર છે ત્યાં સુધી રાહુલ ગાંધીને પણ અનેકવાર શિડ્યુલ મોકલવામાં આવ્યા, પ્રિયંકા ગાંધીને તો નવરાત્રિનો પણ શેડ્યુલ મોકલવામાં આવ્યો હતો કે તમે અહીંયા આવો, નવરાત્રિમાં પણ માતાજીના દર્શનમાં ત્યાં જઈએ, એ લોકો નવરાત્રિના ગરબા પણ રમે, એક મહિલા સંમેલન પણ કરે. પરંતુ ખબર નહીં, યા તો ગુજરાતમાંથી રસ નીકળી ગયો છે બંનેને, રાહુલ ગાંધી કે પ્રિયંકા ગાંધીને, અથવા તો એને ખબર પડી ગઈ છે કે અહીંયા ગમે એટલું તૂટીએ પણ પરિણામ આવતું નથી. જો પરિણામ તો છે, જો આટલી કેટલી બેઠક મળે, યુપીમાં નથી મળતી એટલે ગુજરાતથી બેઠક મળે. પણ હું એ જ કહું છું કે એ આટલી બેઠક મળે છે એમ છતાં રાહુલ ગાંધી, ચલો એના માટે તો બાનું બતાવી દીધું કે એ ભારત જોડો યાત્રામાં છે. પ્રિયંકા ગાંધી શું કરતા હતા, હિમાચલનો પ્રવાસ પણ ઘણા સમયથી બંધ પૂરો થઈ ગયો હતો ત્યાં, તો એ પછી પણ એ અહીંયા નથી આવ્યા. એટલે યા તો રાષ્ટ્રીય નેતાઓને અહીંયા ઇન્ટરેસ્ટ નથી. પર્ટિક્યુલર રાહુલ ગાંધી અને પ્રિયંકા ગાંધીની વાત કરું. હવે બીજી વાત કે એ નેતાને એવું લાગે તો એક, તમે જ્યારે રાહુલ ગાંધી લાસ્ટ ટાઈમ આવ્યા ત્યારે ભરતસિંહ ટ્રાન્સલેટ કરતા હતા અને અધવચ્ચેથી જ ભરતસિંહે કીધું કે તમે હિન્દીમાં ચાલુ રાખો, અહીંની જનતા હિન્દી સમજે છે. એટલે જેવા એ જતા હતા તો રાહુલ ગાંધી અચ્છા નહીં કરના હે. હવે જ્યારે આવી વસ્તુ સ્ટેજ ઉપરથી થતી હોય અને ગુજરાતની જનતા તો તમે કીધું કે આપણો શો બોલ્ડનેસ માટે જાણીતો છે, પણ એક ગુજરાતી ચોખ્ખું અને સ્પષ્ટ બોલવા માટે જાણીતો છે અને એ ક્લિક કરી જ લે, અને એણે ક્લિક કરી જ લીધું કે જો બાયફું. એટલે આ જો બાયફું જ્યાંથી આવે છે ને ત્યાં તમામ કોંગ્રેસની જે મહેનત હોય છે ને એના ઉપર પાણી ફરી જાય છે. અને મેં 2006થી રિપોર્ટિંગ શરૂ કર્યું, પત્રકારત્વમાં આવ્યો છું, એ પહેલાં થોડો ઇન્ટરેસ્ટ હતો એટલે જોતો આવતો હતો, વાંચતો આવતો હતો. દરેક વખતે કોઈ પણ ચૂંટણી હોય, ચાહે વિધાનસભાની હોય ચાહે લોકસભાની હોય, કોંગ્રેસ તરફથી કોઈને કોઈ, ઇન્વર્ટ કોમામાં કહું તો મણિશંકર અય્યર સાબિત થઈ જ જાય છે અને બધી મહેનત ઉપર પાણી ફરી જાય છે. એટલે એ લોકો પણ નહોતા ઈચ્છતા કે કોઈ આવું અહીંયા આવીને બાફી જાય, અને સામેથી પણ કોઈ એવું નહોતું ઈચ્છતા કે અમે ત્યાં જઈને આ જે નબળાઈ છે એ નબળાઈ અમારા માથે લઈએ. अभिषेक देखिए, मणिशंकर अय्यर की बात की, उन्होंने तो एक एजेंसी को बयान दिया था, लेकिन मधुसूदन मिस्त्री तो आपको बयान दिया था. क्या उनकी जबान फिसली थी या जानबूझकर इस प्रकार से बोले थे? रोहन भाई बिल्कुल नहीं फिसली थी, क्योंकि मैंने 3 सवाल किए जब उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर कहा कि नरेंद्र मोदी का औकात बता देंगे. मैंने काउंटर किया, मैंने उनसे पूछा कि आप इतना आक्रोश में क्यों हैं कि आप औकात बताने की बात कर रहे हैं. मैंने रिपीट इसीलिए किया था कि अगर उनके मुंह से निकल गया है तो अपोलोजाइज करें, वो बोले कि हाँ मुझे नहीं बोलना चाहिए, या एक उम्र है उनकी, अगर गलती से निकला है तो वो अपॉर्चुनिटी है, आप बोलिए कि नहीं मैं ये कहना नहीं चाह रहा था, मेरे कहने का मतलब ये. लेकिन वो उस पर अड़े रहे. फिर मैंने उस पर काउंटर क्वेश्चन किया, हमने कहा आप ये जो कह रहे हैं आपको लगता है इसका क्या होगा. इस पर भी उन्होंने काउंटर क्वेश्चन कर जवाब दिया कि हाँ मैं यही कह रहा हूं. तो 3 बार उन्होंने ये बात कही रौनक भाई. इसका मतलब था कि उनके क्लियर था. और मैं बताऊं, उस इंटरव्यू के करीब 10 दिन तक तो वो आए नहीं नजर. 10 दिन मैं उनको ट्रेस करता रहा कि वो मिले तो उनसे पूछूं. 10 दिन बाद जब वो मुझको मिले उसके बाद भी फिर मैंने उनका 10 मिनट का पूरा इंटरव्यू किया. तब भी मैंने उनसे पूछा कि आपको कुछ पछतावा है जो आपने बोला था. नहीं बिल्कुल नहीं. लेकिन अभिषेक भाई, कांग्रेस के बाकी लीडर्स क्या बता रहे थे, क्या सर पकड़ रहे थे या खुश थे कि नहीं आक्रामकता से विरोध किया? नहीं सर नहीं पकड़ रहे थे, वो अपने सर को सही दिशा में लाने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे टैकल करें इस बात को, कि कैसे इसका जवाब दें. क्योंकि उसके बाद उन्होंने पहला काम ये किया कि मधुसूदन मिस्त्री को मना किया कि मीडिया से बात नहीं कीजिएगा. मैं उसके बाद अगले दिन उनके पास गया, उसके बाद फिर गया, उन्होंने क्लियर कहा मुझे नहीं बात करनी है. तो कांग्रेस ने इसीलिए उनको खामोश कर दिया कि आप बोलिएगा नहीं, आपने वो गलती कर दी है जो मणिशंकर अय्यर ने कर दी थी. लेकिन 10 दिन बाद जब आखिरकार मैंने उनको कन्विंस किया, हमने कहा अपनी बात तो रखिए, फिर मैंने ये सवाल किया रौनक भाई, और फिर उन्होंने कहा कि हाँ मैंने जो कहा था वो सरदार पटेल से तुलना करके कहा था. सरदार पटेल कहाँ नरेंद्र मोदी. और एक बात और जोड़ दिया कि मोदी के नाते ही गुजरात में आतंकवाद आया, उसके पहले आतंकवाद नहीं था. 2002 के दंगे हुए तो गुजरात में आतंकवाद आया. तो आप ये सोचिए कि इस तरह से बयान कांग्रेस की ओर से आ रहे हैं और बीजेपी ने लपका इन सारे बयानों को, हाथों हाथ लपका है. ખેર એક વિરામ લઈશ, વિરામ બાદ એક અલગ પ્રકારનો મુદ્દો લઈને આવીશ, કારણ કે આ ચૂંટણીનું કવરેજ દેશ અને દુનિયાની ટેલિવિઝન અને પ્રિન્ટ બંને કર્યું છે. ત્યારે ગુજરાતમાં જે કેમ્પેન થયું છે, ગુજરાતને દેશ અને દુનિયાના પત્રકારોએ જોયું છે, તો એ પત્રકારો આટલા દિવસમાં ગુજરાતની કયા પ્રકારની ઇમેજ બનાવીને જઈ રહ્યા છે. હું ફરીથી કહીશ, મારો મતલબ મોદીએ બનાવેલા
ગુજરાત મોડેલો નથી. એ ગુજરાત જે 1960માં જન્મ્યું હતું, એ ગુજરાત જેનો ગુજરાતી પ્રગતિશીલ વિચારધારા માને છે, એની અંદર માને છે, એને આ પત્રકારોએ કેવી રીતે મૂલવ્યું, એક વિરામ બાદ કરીશું વાત. કેમ કે ચૂંટણીમાં આપણે મતદાન કરીશું, એક સરકાર બનશે અને આપણે સમજી વિચારીને મતદાન કરીશું, ગુજરાતમાં સારી સરકાર બનશે. પરંતુ આ પ્રક્રિયા દરમિયાન અનેક પત્રકારો ગુજરાત આવ્યા, આપણા ગુજરાતની ખુશ્બુ લઈને પણ જઈ રહ્યા છે અને આપણી આ મહેક આખી દુનિયાએ જોઈ છે. છતાં પણ આ ઇલેક્શનની અંદર અનેકવાર ગુજરાત મોડેલ, દિલ્હી મોડેલ, ગુજરાત દેશનું સારું મોડેલ તો દિલ્હીના લોકો કે અમારું મોડેલ સારું, આ બધી ચર્ચા થઈ છે. ત્યારે લાગ્યું કે પત્રકારો આ વિશે શું વિચારે છે, એની વાત કરવી જોઈએ, એની ચર્ચા થવી જોઈએ. હિરેન, તમારા હિસાબથી આપણું ગુજરાત મોડેલ શ્રેષ્ઠ કે પછી દિલ્હીથી પત્રકાર આવીને જે વાત કરતા હોય એ દિલ્હીનું વિકાસ મોડેલ શ્રેષ્ઠ? જો 100% એમાં કોઈ બેમત નથી ગુજરાત મોડલની, પરંતુ જ્યારે ગુજરાત મોડલ એક ચોક્કસ સમયમાં ફિટ કરી દેવામાં આવે છે એનો હું સખત વિરોધ કરું છું. કારણ કે ગુજરાતી એ જ પુરુષાર્થી છે, ગુજરાતી એ જ પ્રગતિ છે. ગુજરાતીઓ જ્યારે કોઈ જ સંસાધનો નહોતા ત્યારે પણ દરિયા પાર જઈ અને ગુજરાતને બહેતર બનાવ્યું છે. ગુજરાતનું જે નામ છે એ વિશ્વમાં ભમતું કર્યું છે. એટલે ગુજરાત વિકાસશીલ છે, વિકસિત છે, એમાં કોઈ બેમત નથી. પરંતુ જ્યારે જ્યારે એને કોઈ પર્ટિક્યુલર સમયમાં ફિટ કરી દેવામાં આવે છે કે 2002 પછીનું ગુજરાત, એની સાથે હું સહમત નથી. હા, એટલા જ વાત સાથે ચોક્કસ સહમત છું કે જે એની ગતિ વધી છે, વિકાસની ગતિ વધી છે, એ 2002 પછી ચોક્કસપણે વધી છે. પણ એમાંય હું એટલું સ્પષ્ટ માનું છું કે ભૌતિક વિકાસની ગતિ વધી છે, હજી જે મૂળભૂત વિકાસ છે એની ગતિ હજુ પણ વધી નથી. આ છે આપણું ગુજરાત. ખેર, કુશાંક સાથે વાત કરી લે. કુશાંક, કેમ કે જો નરેન્દ્રભાઈ ભાષણની અંદર કહેતા હોય છે કે અગાઉ કેવા તોફાનો હતા કોઈએ જોયા નથી, કેમ કે 27 વર્ષથી બીજેપીની સરકાર છે અને આપની ઉંમર પણ કદાચ એની આસપાસની હશે, એટલે જૂની સરકાર, જૂનો માહોલ તમે વડીલોના મોઢેથી સાંભળ્યો ને જાણ્યો હશે. અને મુદ્દો પણ રહ્યો, ખાસ કરીને મુદ્દો રહ્યો કે અગાઉ શું હતું 27 વર્ષ પહેલાં. તમે શું માનો છો, શું 27 વર્ષની અંદર અગાઉની તુલનામાં ખરેખર સ્થિતિમાં સુધારો થયો છે? જો આધુનિકીકરણ જેમ જેમ એક જનરેશનમાં થતું જાય છે તેમ આ ગુજરાતમાં જે ડેવલપમેન્ટ છે તે પણ એ રીતના થઈ રહ્યું છે. હવે જોઈએ તો છેલ્લા 5 વર્ષની અંદર જે અલગ અલગ પ્રોજેક્ટ આવ્યા, મોટા પ્રોજેક્ટની જ વાત કરીએ, મેટ્રો પ્રોજેક્ટ છે, બુલેટ પ્રોજેક્ટ છે, અલગ અલગ તેની સિવાયના ગ્રામીણ વિસ્તારમાં પણ જે પ્રોજેક્ટ આવ્યા, નો ડાઉટ પ્રજાએ તેને અમુક વર્ગના લોકોએ અથવા અમુક જે મતદારો છે તેમણે ક્રિટિસાઇઝ પણ કર્યા, પણ એ પૈકીના પણ અમુક મતદારો એવા પણ છે કે જે પ્રોજેક્ટ શરૂ થયા તો તેનો લાભ પણ લીધો અને તેમાં જે સરકારની કામગીરી હતી તેની સામે તેઓ ખુશ પણ થયા. એટલે એ વાતમાં કોઈ બેમત નથી કે ગુજરાતમાં ડેવલપમેન્ટ થયું છે, તે ચાહે શિક્ષણની રીતે તમે જુઓ કે વિકાસ એટલે કે ડેવલપમેન્ટની વાત તમે જુઓ કે પછી છેવાડાનું જે વ્યક્તિ હોય તેના સુધી જે સરકારની જે યોજનાઓ છે તે પહોંચી રહી હોય તેમાં તમે જુઓ. પણ ચોક્કસથી તે વાતમાં કોઈ પણ જાતનો બેમત નથી કે છેલ્લા 5, 10, 20 વર્ષમાં જે વિકાસ છે તેમાં સતત ડેવલપમેન્ટ થતું ગયું છે અને તેમાં પણ જે अपग्रेडेशन છે તેમાં પણ ચોક્કસથી વધારો થયેલો છે. मनोज, क्या आप क्या मानते हैं? देखिए, हर कोई बोलता है कि गुजरात में डेवलपमेंट हुआ है, गुजरात विकास शब्द ही शायद देश को गुजरात ने दिया है, विकास पुरुष हमने ही आपको भेजा है. फिर भी क्यों हर बार जो भी आता है गुजरात के विकास मॉडल को चैलेंज करके जाता है? देखिए, चैलेंज अपनी जगह है, लेकिन टैलेंट इज लेटेंट टिल द टाइम इट गेट्स एन अपॉर्चुनिटी. अब मजे की बात यह है कि टैलेंट और लेटेंट में जो वर्ड्स होते हैं वो दोनों सेम हैं, लेकिन जब आप उनको इंटरचेंज करते हैं उसको अपॉर्चुनिटी कहते हैं. जब गुजरात से बंगाल से टाटा नैनो की फैक्ट्री को हटाया गया तो कोई भी स्टेट उसको ग्रैब कर सकता था, लेकिन मुख्यमंत्री उस समय थे यहाँ पर नरेंद्र मोदी. उन्होंने ग्रैब करके यहाँ पर उसकी फैक्ट्री को ला दिया. फैक्ट्री का क्या हुआ ये सब जानते हैं, भले ही अपॉर्चुनिटी में हो वो कॉस्टिंग पर ना बैठी हो. गिफ्ट सिटी आपने बनाया है, बाकी ऐसे इतने काम है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो जो कि विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है वो आपने बनाई है. रन ऑफ कच्छ, एक बंजर जमीन, एक बंजर रेगिस्तान को आपने 4 महीने की ऐसी अपॉर्चुनिटी बना दिया है कि उस पर 100 करोड़ रुपए आप हर साल का टर्नओवर करते हैं और देश नहीं विदेश से बुकिंग आती है कि हम कितनी जल्दी उस दिन उस रात तक वहां पहुंच सकें.
सिर्फ यही नहीं, यहाँ के सामान को, सूरत को आपने यहाँ से अभी एक CVD डायमंड यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी डायमंड जिसको खुद डायमंड वाले कहते हैं, उसको आपने तैयार कर दिया है। तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि इसी राज्य ने 2002 के दंगे देखे हैं, इसी राज्य ने गोधरा देखा है, या तो ये उस पर राजनीति करके बैठे रहते या फिर ये एक कदम आगे बढ़ के चले जाते। बाकी सारे राज्यों के पास भी अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी में पॉलिटिकल विल या फिर पॉलिटिकल विल पावर या एक विजन होना जरूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि आप अगर गाड़ी में बैठे हैं तो जा कहाँ रहे हैं, नहीं तो फ्यूल रास्ते में खत्म हो जाएगा और उसके बाद ठन गोपाल रास्ते में आपको खुद ही एक लिफ्ट लेनी पड़ जाएगी। लेकिन ये जो विजन है, ये जो दूरदर्शिता है, इसका बहुत बड़ा फायदा होता है, जो कि पॉलिटिकल विल, लीडरशिप और स्टेबिलिटी से आती है, जिसका फायदा फिलहाल गुजरात को लगातार मिल रहा है, बाकी किसी भी राज्य से अलग। अभिषेक देखिए, मनोज्ञा जितनी भी बात की, 25 बार आप बोली, वो गुजरात को बता रही थी, आप मतलब हम गुजरातियों को बोल रही थी। लेकिन सवाल यह है कि आपके दिल्ली से आई हुई आम आदमी पार्टी तो ये कह रही है कि गुजरात मॉडल कुछ है ही नहीं, खोखला मॉडल है, दिल्ली का मॉडल बेस्ट है। सवाल यह है कि आप शब्द हमारे लिए होना चाहिए कि आपने, यानी कि गुजरातियों ने देश को विकास का मॉडल दिया, जबकि आप वाले जो दिल्ली से आते हैं वो बोलते हैं दिल्ली ने दिया। रौनक भाई, आम आदमी पार्टी वाले जो बात बोलते हैं उसमें एक बात पे ध्यान दीजिएगा, वो बहुत ही माइन्यूट है। वो बार बार ये कहते हैं, और मैंने उनके कई इंटरव्यू में देखा, मैंने उनके नेताओं का इंटरव्यू किया, वो बार बार कहते हैं कि गुजरात मॉडल मोदी के बाद का गुजरात मॉडल, वे मोदी के वक्त को नहीं छिड़ते हैं। मैं क्लियर आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने ईशुदान गढ़वी का भी इंटरव्यू किया था जब उनको सीएम डिक्लेयर किया गया था बतौर सीएम कैंडिडेट, तब भी कह रहे थे कि मोदी जी हमारी मदद कर दें जिताने में, मोदी जी से तो यहाँ काम होता था, मोदी जी के जाने के बाद काम नहीं हुआ। हमने मनीष सिसोदिया का इंटरव्यू इसी अहमदाबाद में किया रौनक भाई, और मनीष सिसोदिया ने ऑन रिकॉर्ड मुझसे कहा कि मोदी जी थे तो काम होता था, अब तो मोदी जी यहाँ पर है नहीं। तो आम आदमी पार्टी ने डिवाइड कर दिया है, वो 2002 से लेकर के और 2014 तक का जो उनका रूल है उसको उन्होंने अलग कर दिया है, और 2014 से बाद से अब तक को अलग कर दिया है। और बार बार दिल्ली का जो मॉडल की तुलना करते हैं वो पोस्ट 2014 यानी कि मोदी जी के दिल्ली आने के बाद का वो मॉडल दिखाते हैं कि हमारा मॉडल इतना खूबसूरत है। और उनके मॉडल का जो सबसे बड़ा पहलू रौनक भाई वो है फ्री का मामला, वो उनके लिए ब्रह्मास्त्र, उनको लगता है ये फ्री वाला जो ये हमारा चल जाएगा। परसों अरविंद केजरीवाल का रोड शो था, मैं मौजूद था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पंजाब के बिल निकाले बिजली के जो भगवंत मान से माने, और ऐसे भीड़ में यूं उड़ा दिए कि ये देखिए हमने फ्री कर दिया, यहां भी फ्री कर देंगे। तो वो सारा जोर इसी फ्री पर दे रहे हैं। और एक बात मैं और बताऊं, गुजरात मॉडल की खामियां जो निकाल रहे हैं वो तो निकाल रहे हैं, लेकिन वो पूरा उनका फोकस है कि लोग इसको खरीद लें कि हम फ्री में इतना दे देंगे, और मोदी पर अटैक करने से लगातार बच रहे हैं। गुजरात का मॉडल, फिर कह रहा हूं, उनके लिए अटैक वहां हो रहा है जब मोदी गुजरात से उठ करके दिल्ली चले गए, उसके पहले वो अटैक नहीं कर रहे हैं। उनको मालूम है ये नुकसान कर सकता है उनको। लेकिन देखिए, आपने फ्री वाली बात की, मैं बोलूंगा तो मैं तो ना बोलूंगा, नहीं भाई हम फ्री वाले नहीं। आपका खुद का आकलन क्या है? क्या गुजरात के नागरिक इस फ्री वाला जो फंडा है उससे प्रभावित हुए? दो हिस्सों, इसको बांट दीजिए आप, मैं इसको दो हिस्सों में बांटता हूं। एक बांट दीजिए कि जो लोअर इनकम ग्रुप है उस पर बांट दीजिए, वहां पर असर है, मैंने बात की है, देखा है। जो लोअर इनकम ग्रुप वाले हैं, जो चाली में रहने वाले हैं, वो प्रभावित हैं कि फ्री में मिल रहा है, हमको भी मिल जाएगा। लेकिन जो थोड़ा सा सस्टेनेबल जिसकी ग्रोथ है, जो अपना कमा खा रहा है, वो एकदम नहीं कह रहा है, वो कह रहा है कि नहीं चाहिए हमको। वो ये भी कह रहा है कि आप फ्री का हमको लेंगे, और कहां से लेंगे? हमारी से लेंगे, हम पे आप टैक्स लगाएंगे, हमको हमारा ही पैसा है, वही पैसा आप इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। तो ये दो तरह की फीलिंग है। लेकिन जहां पर जो तबका प्रभावित है, लोअर इनकम ग्रुप, वो वहां तक बात पहुंची, इसमें कोई इंकार नहीं कर सकता है। वो भी ये बात देख रहा है कि ये फ्री की जो बात करने वाले लोग हैं, ये कितने टिकाऊ हैं, ये कितना टिकेंगे। यहां पर आकर के उनका जो फ्री का मॉडल है वो उस तरह से वर्कआउट नहीं कर पा रहा है जिसकी वो उम्मीद करके बैठे थे। रौनक भाई देखिए, हम गुजरात से हैं और हर कोई जानता है कि देश को सरदार साहब ने बनाया, गुजरात ने बनाया देश का नक्शा। तो मैं प्रांतवाद की बात तो नहीं कर सकता हूं क्योंकि भारत माता के संतान है, लेकिन हम और आप दोनों भाई उस नाते हैं कि पहले एक ही परिवार के थे, गुजरात महाराष्ट्र एक होता था। अब तुलना होने लगी है गुजरात नंबर 1 या महाराष्ट्र नंबर 1। देखिए, जब तक आपके यहाँ सरकार बीजेपी की नहीं थी उसकी काफ़ी चर्चा हुई, बीजेपी की सरकार आने के बाद ये भी चर्चा होने लगी। मुझे भी याद है, मैं भी खंडन करता रहता था कि नहीं आपके नेता गलत बोल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ आता है, जलन आपके यहाँ होती है। क्या वजह रही? और ऐसे हालत के चल के महाराष्ट्र के बीजेपी के लीडर्स वो किस प्रकार से फिक्स में आ जाते हैं?
जी देखिए रौनक भाई, जब आपने सवाल पूछा है कि मुख्य तौर पर जब ये गुजरात में चुनाव का ऐलान हो गया, लेकिन सियासत जो है वो महाराष्ट्र की ज़्यादा गरमाई हुई दिखी। मुख्य तौर पर जो विपक्षी पार्टी थी शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी, वो लगातार जो है वो इसके मुद्दे पर विकास के और खास तौर से अगर देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट के दो जो बड़े प्रोजेक्ट जो है वो गुजरात में इन दिनों चले आए, जिसको लेकर काफ़ी सियासत जो है वो राजनीति में देखने को मिली। और इसी को लेकर जो है वो जो फिलहाल शिंदे और फडणवीस की सरकार महाराष्ट्र में चल रही है, उनको घेरने की भी काफी कोशिश जो है वो शिवसेना की तरफ से की गई। लेकिन मुख्य तौर पर गुजरात और दूसरी भी सरकारें जो है इन्वेस्टमेंट को अपने राज्य में लाने के लिए बड़े बड़े समिट करती रहती है, कई तरह के ऑफर जो है वो इन्वेस्टर्स को देती रहती है। लेकिन मुझे लगता है कि जो पॉलिसी बनाने की बात होती है उसमें कहीं ना कहीं गुजरात एक कदम आगे निकल गया, और इसीलिए जो दो बड़े प्रोजेक्ट को लेकर महाराष्ट्र में जमकर हल्ला हुआ और शिंदे फडणवीस सरकार को वहां पर घेरा गया, और यह भी बीजेपी पर आरोप लगाए गए कि प्रधानमंत्री अपना जो करिश्मा है उसका इस्तेमाल कर कर चुनाव में फायदा मिल सके, इसलिए दो प्रोजेक्ट यहां पर लेकर आए। लेकिन मुझे लगता है कि इसको लेकर गुजरात सरकार भी अंदर खाने काफी प्लानिंग कर रही थी, जैसे महाराष्ट्र सरकार उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में उस वक्त प्लानिंग कर रही थी कि दो बड़े प्रोजेक्ट ये महाराष्ट्र में आने चाहिए। लेकिन एक कदम आगे बढ़कर गुजरात सरकार ने इसकी पॉलिसी बनाई, और निश्चित तौर पर उनको कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का भी फायदा मिला होगा, और इसीलिए दो प्रोजेक्ट जो है यहां पर आने में उनको फायदा मिला है। मुझे लगता है कि विकास के मामले में अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र भी उतना ही आगे है, लेकिन अब अगर देखा जाए तो गुजरात नेक टू नेक उनसे कंपटीशन में आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। और लेटेस्ट दो प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए तो वो इसीलिए उनके पास आए कि उन्होंने उसकी पॉलिसी बनाई और उस पर वर्कआउट किया, और अच्छे जो इंसेंटिव्स होते हैं वो उस कंपनी को देने में गुजरात सरकार कामयाब रही। खैर, विकास की बात हो रही है तो स्वाभाविक तौर पे विकास भाई से अच्छा कौन बता सकता है। विकास भाई, एक विकास पुरुष को हमने दिल्ली भेजा, लेकिन हर बार उसी गुजरात के विकास मॉडल के ऊपर सवाल उठते हैं। आपका खुद का आकलन क्या है? आप तो देश भर में गए हैं, देश भर के लीडर्स को मिले, देश भर के बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री को भी मिले। वो मुख्यमंत्री पर्दे के पीछे तो कुछ बताते होंगे। क्या वो लोग मानते हैं कांग्रेस भूल जाइए, आम आदमी पार्टी भूल जाइए? क्या बीजेपी के दूसरे स्टेट के मुख्यमंत्री मानते हैं कि उनके स्टेट से ज्यादा विकास या विकास का मॉडल गुजरात है? देखिए, वो स्टेट माने या ना माने रौनक भाई, लेकिन पूरा देश में जो विकास का मॉडल प्रोजेक्ट किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उस वक्त के मुख्यमंत्री के तौर पर, उसको कहना चाहिए कि एक्सेप्टेंस मिला है दो बार, एक बार नहीं दो बार। 2014 में जनता ने जो है वो 30 साल बाद ऐसी सरकार बनाई जो स्पष्ट बहुमत की थी। 2019 में फिर से सरकार बनाई स्पष्ट बहुमत की, और पिछली बार यानी कि 2014 से ज़्यादा सीटें देकर संसद भेजा। जाहिर तौर पर अगर मुख्यमंत्री ना भी माने किसी प्रतिद्वंद्विता की वजह से, चाहे वो विपक्ष के हों या पक्ष के हों, लेकिन जनता अगर स्वीकार कर देती है तो ये सबसे बड़ी मोहर होती है लोकतंत्र में, और उसके बाद इफ एंड बट के कोई वजह नहीं रहती। जहाँ तक विपक्ष की बात है, विपक्ष का काम सवाल उठाना है। विकास का मॉडल चाहे जितना अच्छा हो, अमेरिका जो कि सबसे विकसित देश है दुनिया का, जापान जो कि सबसे विकसित देश है दुनिया का, वहाँ पर भी अगर विपक्ष सवाल उठाएगा सत्ताधारी दल पर तो यही उठाएगा कि डेवलपमेंट अभी और होना बाकी है। चाहे वो ग्रोथ इंजन के फ्रंट पर हो, चाहे अमेरिका या जापान में इंश्योरेंस के फ्रंट पर हो, जो वहाँ के मुद्दे हैं, हेल्थ इश्यूज हो। लेकिन भारत में ये मुद्दा अगर उठ रहा है बार बार तो कोई नई बात नहीं। विपक्ष का काम सरकार को बार बार कटघरे में खड़ा करना है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि गुजरात में जब इतना ज़बरदस्त विकास मॉडल है जिसको पूरे देश में एक्सेप्टेंस मिल रहा है, तो फिर गुजरात में ही वो एक्सेप्टेंस क्यों नहीं हो पा रहा है? जितनी सीटें पिछले 3 चुनावों में लगातार कम होती चली गई बीजेपी की, क्या एक बड़ा सवाल ये है इस बार वो बढ़ेंगी? और अगर बढ़ती हैं तो क्या कांग्रेस कमज़ोर होगी इस वजह से बढ़ेंगी, या फिर आम आदमी पार्टी एक बड़ा हिस्सा वोटों का कुतरने में कामयाब होगी इसलिए बढ़ेगी? ये एक बड़ा सवाल है। एक आखिरी सवाल विकास भाई, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं, शायद दिल्ली में बैठकर मेरे से भी ज्यादा जानते हैं। ये डबल इंजन की सरकार नारा तो है, और डबल इंजन की सरकार आज से नहीं है, 2014 से गुजरात में। आपको क्या लग रहा है, ये डबल इंजन की सरकार में बीच में ऐसे ड्राइवर को, एक इंजन के ड्राइवर को क्यों बदलना पड़ा? क्या विकास सही नहीं हो रहा था? वजह क्या रही? जी देखिए, बिल्कुल रौनक भाई, आपने बहुत ही ज़बरदस्त सवाल पूछा है। और देखिए, केवल गुजरात में नहीं बल्कि और राज्यों में भी बार बार जो दूसरा इंजन है उसका ड्राइवर बदलना पड़ता है, क्योंकि जो डबल इंजन की सरकारों में जो दो इंजनों के ड्राइवरों के बीच सामंजस्य होना चाहिए, शायद वो नहीं हो पाता है। इसलिए जब ये लगता है
केंद्रीय बीजेपी नेतृत्व को कि यहाँ पर जो इंजन का ड्राइवर है वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, उसकी जो केंद्र की योजनाएं हों या राज्य की योजनाएं हों उनको ज़मीन पर सही तरीके से नहीं उतार पा रहा है, या वो कास्ट कॉम्बिनेशन में सही फिट नहीं बैठ रहा है, जिन उम्मीदों के साथ उसको मुख्यमंत्री के गद्दी पर बिठाया गया था वहाँ पर वो सही नहीं बैठ रहा है, तो फिर बदलना पड़ता है। और गुजरात तो वो राज्य है जो कि विकास का मॉडल है, देश दुनिया के सामने शोकेस है। अगर यहाँ पर मुख्यमंत्री बदलने से दोबारा चुनावी जीत हासिल होती है तो क्यों नहीं बदलेंगे? जी मनोज्ञा, एक लाइन में गुजरात चुनाव को आप किस प्रकार से डिफाइन करेगी? आई फील बहुत ही मीठा चुनाव जिसमें दिखने में तो मिर्ची है लेकिन तीखापन कम है। अभिषेक, एक लाइन में आप किस प्रकार से डिफाइन करते हैं? मुझे लग रहा है कि ये चुनाव जो है बहुत ही एक ऐसा चुनाव है रौनक भाई जिसके बारे में अनुमान जो है चाय पीते हुए लगाया जा सकता है, और हम ही नहीं आम जनता अनुमान लगा सकती है। जो तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं, बहुत ज्यादा किसी विशेषज्ञ की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। रौनक, आप किस प्रकार से डिफाइन करते हैं? ये देखिए, मुझे लगता है कि ये जो त्रिकोणीय मुकाबला इस बार चुनाव में नजर आ रहा है, देखना नतीजों के बाद महत्वपूर्ण होगा कि क्या वाकई में ये त्रिकोणीय था या ये आम आदमी वर्सेस बीजेपी की ज्यादा लड़ाई थी, क्योंकि प्रचार में अगर देखा जाए तो ये दोनों ज्यादा दिखाई दे रहे थे, कांग्रेस मुझे दिखाई नहीं दी। विकास, आप किस प्रकार से देख रहे हैं? रौनक भाई, मैं इस इलेक्शन को लॉन्च पैड के रूप में देखता हूं 2023 के 2024 के लोकसभा चुनाव के तौर पर, क्योंकि यहाँ से जो जीत का मोमेंटम बीजेपी को मिलेगा वो कर्नाटक और फिर 3 राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान होता हुआ 2024 तक जाएगा, और इसलिए मैं इस चुनाव को लॉन्च पैड इलेक्शन मानता हूँ। હિરેન, તમે કેવી રીતે જુઓ છો? જો આ ચુનાવ એવી રીતે ચૂંટણી એવી રીતે છે કે મને કોઈ જ ફરક નથી પડતો. ગુજરાતની જનતાએ માની લીધું છે કે કોઈ પણની સરકાર આવે મને કોઈ જ ફરક નથી પડતો. પોતાનો ધર્મ છે, વોટ દેવાનો, વોટ દઈ દેશે. કુશાંક, આપ કેવી રીતે જુઓ છો? આ ચૂંટણીમાં સૌથી વધારે કોઈ ફેક્ટર મહત્વનું રહ્યું તો તે અંડર કરંટ હતો. ગ્રામીણ વિસ્તારમાં લોકોના મત આપણે ન સમજી શક્યા અને તે સૌથી મહત્વનું પાસું રહ્યું. ખેર, આ પ્રદેશના નાગરિક તરીકે, સરદારના ગુજરાતના નાગરિક તરીકે જો મને કોઈ પૂછે તો હું ચોક્કસથી કહીશ મારું ગુજરાત દેશ જ નહીં દુનિયામાં અવ્વલ હતું, છે અને રહેશે, પણ એની જવાબદારી એ અવ્વલ રાખવાની આપણી છે. દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રની અંદર મતદાન ઓછું થયું છે, ટકાવારી ઓછી થઈ છે. બીજેપીનો દાવો છે કે મતદાન વધુ થયું છે, નંબર ઓફ મતદાતાએ વધુ મતદાન કર્યું છે, પણ ટકાવારી ઓછી થઈ છે. હવે ગુજરાતની અસ્મિતાને આગળ વધારવાની જવાબદારી મધ્ય ગુજરાત અને ઉત્તર ગુજરાતના લોકોની છે. પરમ દિવસે મતદાન થશે, લાઈન લગાડજો. ઈવીએમની જેટલી કેપેસિટી છે, મતદાર યાદીમાં જેટલા નામ છે એ પ્રકારેનું મતદાન કરજો, કારણ કે મારા ગુજરાતને કોઈ પણ આવીને ચેલેન્જ કરી જાય ને એ ક્યારે ન ચાલી શકે. કમસે કમ મતદાનના પરિપ્રેક્ષમાં તો કોઈની તાકાત ન હોવી જોઈએ કે કોઈ એમ કે ગુજરાતના લોકો જાગૃત નથી. બસ એ જ જાગૃતતા લાવવા હું પણ બોલ્યો છું, આખું ગુજરાત બોલશે અને એનું પરિણામ 8મી તારીખે જોવા મળશે.